Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, welcome in a class. Dear students, today we will going to start unit number 3, periodic table and periodicity of properties. Students, before going to today's topic, we will discuss some points related to the periodic table and their properties. Students, do you know what is an element? An element is a pure form of matter. Pure form of matter which cannot be broke down into more simpler form. For example, gold is an element and it cannot be converted into any other simpler substance by means of any physical or chemical method. Do you know? आपके पास कोई भी एलिमेंट है, ये कंपोज हुआ है मोर देन वन एटम से. ठीक है, अब एक एलिमेंट के अंदर चाहे थाउजेंड्स ऑफ एटम्स पाए जाएं, लेकिन वो सेम होंगी, एक ही कैटेगरी से रिलेटेड होंगे. ठीक है, अगर आपके पास गोल्ड का एलिमेंट है तो यहाँ पर पाए जाने वाला हर एटम इस एलिमेंट में पाए जाने वाला गोल्ड ही का होगा. स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एन एलिमेंट? स्टूडेंट्स, वी कैन रिप्रेजेंट एन एलिमेंट बाय द शॉर्टेस्ट फॉर्म symbol. Now what is a symbol? The shortest name of an element is known as symbol. For example, students, gold. I use Ag for gold. This is the symbolical representation for gold. Similarly, Ag is the symbolical representation of silver. Na is the symbolical representation of sodium. C is the symbolical representation of carbon. H represents hydrogen. Cl represents chlorine. Students, do you know how many elements were discovered by Muslim scientists? The period of Muslim scientists were known as alchemists. There are 3 elements discovered by alchemists or discovered by Muslim scientists, that were arsenic, antimony and bismuth. Students, I use symbolical representation, but as represents arsenic, antimony and Bi bismuth. Is it clear? Students, today I am going to deliver you a lecture on introduction to periodic table. Students, as you learned about the element and their classification, as element is specifically classified on the basis of metal and non-metal. Students, up to the year of 1800 there were only 34 elements were discovered. Students, हम अगर 1800 की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 34 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड हुए थे. ठीक है, बट यहाँ पर आके केमिस्ट ने स्टॉप नहीं किया, बल्कि इसके बाद फर्दर जो है रिसर्चेस ज़्यादा से ज़्यादा की गई और टिल जो है 1870 जो है यहाँ से रिसर्च का पीरियड ज़्यादा अरूज पर था एंड अप टू 1974. और इस पीरियड के अंदर जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए वो 34 का डबल नंबर था. ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं 1800 से 1974 तक के, तो आपके पास 105 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड हुए. स्टूडेंट्स, 1974 के बाद जो है अभी तक स्टिल अगर हम बात करें तो देर आर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड. स्टूडेंट्स, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके, जिसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकरिंग हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं. स्टूडेंट्स, 92 एलिमेंट्स वर आर नेचुरली अकरिंग एंड remaining 26 elements are discovered in laboratory by man. तो स्टूडेंट्स, 26 एलिमेंट्स लेबॉर्ट्री के अंदर है जो कि मैन मेड प्रिपेयर्ड है. ना स्टूडेंट्स, ये 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड तो हो चुके, लेकिन इन 118 एलिमेंट्स को स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए, केमिस्ट के लिए डिफ़िकल्ट था. ठीक है, 118 एलिमेंट्स, इनकी केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था. इसके लिए केमिस्ट ने एन एलिमेंट को डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैटेगराइज किया, क्लासिफाइड किया इन एलिमेंट्स को, और उसके बाद इन 118 एलिमेंट्स को एज एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज करके
आपको एक टेबल दिया जिस टेबल को हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। The method of arranging elements with similar properties in the same group and separating them from the element with different properties. Students, classification of elements क्या है कि elements को arrange किया गया है किस बेस पे, on the basis of their properties। आइदर जो similar properties हैं उनको एक ग्रुप में अरेंज किया गया है और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेपरेट करके एक ग्रुप में रखा गया है। अब स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन किस पर्पज़ के लिए की गई? तो ये जो है इसका एम ये था कि फॉर द स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड ईजियर। हम पहला एम तो ये था कि ये हम जो है एलिमेंट्स को ईजियर वे में स्टडी कर सकते हैं। दूसरा आपके पास था कि द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इनेबल द chemist to understand and interpret the properties of the elements. Students, first time is for the easiest study and the second aim is interpretation of properties, कि हम easy way में इनको देख के इनकी properties को understand कर सकें। अब students, elements को classify किया किधर गया? एलिमेंट्स को एक स्पेसिफिक टेबल के अंदर क्लासीफाई किया गया 118 एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। और इन जो 118 एलिमेंट्स को जहाँ पर हमने डिस्कस किया या अरेंज किया गया है इनकी प्रॉपर्टीज़ पे, इस टेबल को हम कहेंगे पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन डिफाइन पीरियोडिक टेबल? द टेबल ऑफ एलिमेंट्स obtained by arranging them in order of increasing atomic number in which element with similar properties are placed in the same group is called periodic table. Students, एक ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया गया है on the order of increasing atomic number and with the similar and dissimilar properties. So students, you can see दिस इज़ अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यहाँ पर हमने 118 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है सीक्वेंस वाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट्स, द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल स्टार्टेड इन 1800। मैनी साइंटिस्ट इन डिफरेंट एजेस अटेम्प्ट for classifying the element in different ways, but some of the scientists are, as we will discuss one by one. Students, the first one scientist is Al-Razi. Al-Razi was the Muslim scientist. Al-Razi was the first scientist who classified the known elements into metal and non-metal and their compounds. Students, a German chemist Dobereiner classified the element and his classification is known as Dobereiner's triad. ट्राइएड हम क्यों लगाते हैं यहाँ पर? क्योंकि ये एक लॉ था जो कि डिस्कवर किया था डोबराइनर ने। स्टूडेंट्स, इन 1817 German chemist Dobereiner arranged similar elements in a group of 3 elements and this classification is known as triads. Students, tri represents 3 कि डोबराइनर ने क्या किया 1817 में एक क्लासिफिकेशन दी, एलिमेंट को सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पे क्लासीफाई किया और अपनी क्लासिफिकेशन को डोबराइनर ने नाम दिया ट्राइएड्स का। ट्राइएड्स क्यों कहते हैं ये भी हम फर्दर पढ़ते हैं। Students, the statement of Dobereiner's classification is the atomic mass of the middle element was the approximate arithmetic mean of the atomic mass of other 2 elements. Students, triad represents the 3. Students, Dobereiner ने एक लॉ बनाया जिसको हम डोबराइनर्स का ट्राइएड्स लॉ कहते हैं। ठीक है, इसमें डोबराइनर ने स्टेटमेंट क्या दी
कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज द अप्रॉक्सीमेट अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स। मीन्स के जो ब्रायनर ने 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2 एंड 3। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास है, सेकंड एलिमेंट का एंड थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास है। जो ब्रायनर ने ये स्टेटमेंट दी कि आपके पास जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट है इसकी एवरेज जो है वो आपके पास क्या होगी, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 + 3 = 4 डिवाइडेड बाय, अब इनके एवरेज हम सिंपली ये कहते हैं कि टोटल नंबर को आप प्लस करें और डिवाइडेड बाय आप जितनी आपके पास अमाउंट है उस पर डिवाइड कर दें। आप 2 एलिमेंट्स पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आएगा, ठीक है। सो ये जो एवरेज है ये आपके पास क्या होगी, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। ये स्टेटमेंट थी डो ब्रायनर की। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। क्लोरीन एंड आयोडीन हैव एटॉमिक मास 35.5 एंड 127। एक बात और स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायड रूल है ये आपके पास ग्रुप वाइज होगा, ठीक है। आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल एक आपके पास आ रहे जैसे क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास ग्रुप वाइज, और यहाँ पे आपके पास जो है एटॉमिक मासेस का ह्यूज डिफरेंस होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक सीक्वेंस जाएगा 8 एलिमेंट्स, ये एक पीरियड है, ठीक है, ये दूसरा पीरियड और ये तीसरा पीरियड। अब यहाँ से 8 को क्रॉस करके फिर देन जो है आपके यहाँ पास यहाँ 8 पे आएगा और फिर 8 एलिमेंट्स आपके पास बिटवीन आएंगे। सो एटॉमिक मासेस की बेस पर हम करें इसको, ठीक है। सो क्लोरीन हैविंग 35.5 एटॉमिक मास एंड आयोडीन एटॉमिक मास 127। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रायड रूल, ठीक है, आपके पास स्टेटमेंट ये थी कि पहले जो 2 एलिमेंट्स हैं फर्स्ट एंड थर्ड, इसकी एवरेज लेकर वो जो है आपके पास सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। सो इसी तरह से करेंगे 35.5 + 127, ठीक है। ये आपके पास दोनों का एटॉमिक मास आ गया और इनकी हमने एवरेज लेनी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। जितने आपके पास एलिमेंट हैं उतना हम उस पर डिवाइड करके सिंपली एवरेज ले लेते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा 81.2, ठीक है। और ये 81.2 जो है ये एटॉमिक मास आ रहा है ब्रोमीन का। सो ब्रोमीन को क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों के सेंटर में प्लेस कर दीजिएगा। सो ग्रुप में पहला नंबर आएगा क्लोरीन, देन ब्रोमीन, फिर आयोडीन आएगा, ठीक है। इस तरह से ग्रुप में ग्रुपिंग की है किसने, डो ब्रायनर ने, और इस क्लासिफिकेशन को डो ब्रायनर ने ट्रायड्स रूल का नाम दिया है। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वन साइंटिस्ट इज न्यूलैंड। Students, in 1864, an English chemist Newland arranged the element in order to increasing atomic mass, ठीक है, and his classification is known as octaves। अब इसको हम octaves क्यों कहते हैं वो भी हम देखते हैं कि octave rules आपके पास है क्या। Now students, what is octave law? Students, ऑक्टा रिप्रेजेंट्स 8, ठीक है। ऑक्टा जो है वो 8 को रिप्रेजेंट करता है। सो ऑक्टेव लॉ आपके पास जो कि न्यूलैंड ने प्रेजेंट किया है, ये ऑक्टेव लॉ हमारे पास क्या है, इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। स्टूडेंट्स, कि अगर हम एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस, एक रेगुलर इंटरवल पे अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक masses, then the property of first element is similar to the property of 8th element. Students, how these properties will similar? Students, अगर आप देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एटॉमिक मास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ एंड जो 8th एलिमेंट है उसको हम यहाँ प्लेस नहीं करेंगे, बल्कि उस 8th एलिमेंट को यहाँ प्लेस करेंगे अप टू 14, देन 15 जो है वो यहाँ प्लेस होगा। अब इस तरह से हमारे पास ये एक जो है आपके पास सीक्वेंस बन गया, एक पीरियड है, और ये आपके पास एक कंप्लीट कॉलम बन गया, ठीक है। अब ये जो कॉलम है इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ 8 के साथ और 8 की 15 के साथ, मीन्स के इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपके पास आएंगे
अप टू 118, उन सब के सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी। स्टूडेंट्स ये एक टेबल है, ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे, ठीक है, न्यूलैंड ने जो प्रेजेंट किया उस पर देख लें आप कि आपके पास यहाँ आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अप टू 7, ठीक है। पहले आपके पास एटॉमिक मास जो है वो 7 तक आ रहा है, देन आपके पास जो है यहाँ पे देखें 14 फिर 21, ठीक है। सो आपके पास जो एलिमेंट हम जहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, अगर हम 2 से स्टार्ट करते हैं तो देन 9 एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी 2 पे, ठीक है। हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी। नाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक masses, then property of nth element is similar to the property of first element. Students, the next one scientist is Mendeleev, Dmitry Mendeleev. This is the most important periodic law. Students, Mendeleev ने जो periodic law पेश किया, ये periodic law ही modern periodic law जो है वो इसी law पे डिपेंड करता है। Students, in 1869, a Russian chemist Dmitry Mendeleev arranged elements in order of increasing atomic masses. Students, although के सब साइंटिस्ट ने जितने भी हमने अभी तक स्टडी किए सब ने जो है एटॉमिक मैसेस की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन मैंडलीव ने जो रिसर्च की ये रिसर्च थोड़ी सी उन पीरियोडिक टेबल या उन लॉज से डिफरेंट थी। वो सब के सब लॉज जो है फर्दर जो है 1 by 1 रिजेक्ट होते गए। अब मैंडलीव के बारे में पढ़ते हैं। Now students, what was the statement of Mendeleev's periodic table? The statement of Mendeleev's periodic table is the physical and chemical properties of the element are the periodic function of their atomic masses. Students, किसी भी एलिमेंट की जो फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है देयर एटॉमिक मैसेस की, ठीक है। कि हम किसी एलिमेंट को अरेंज करेंगे एक रेगुलर इंटरवल पे तो वो डिपेंड करती हैं किस पे, उसकी केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। Students, although Mendeleev arranged his periodic table on the base of atomic masses, but this is the Mendeleev periodic table was the base of the modern periodic table. कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया तो मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल को बेस बनाकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया, ठीक है। ऑल्दो कि ये पीरियोडिक टेबल भी रिजेक्ट हो गया था, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसी की यूज़ की गई। स्टूडेंट्स, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जिसकी बेस पर मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल इतना सक्सेसफुल गया? तो देयर आर सम एडवांटेजेस, उनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट एडवांटेजेस आर, first one is there is a regular gradation in physical and chemical properties along the periods and groups. Students, जब मैंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसने एक रेगुलर सीक्वेंस रखा अलोंग द पीरियड्स एंड अलोंग द ग्रुप, एक रेगुलर इंटरवल रखा जिसमें आपके पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हर ग्रुप की जो है वो सिमिलर थी और हर जो पीरियड्स है उसमें भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ एक ही जैसी प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को रखा गया। ही लेफ्ट मैनी वैकेंट स्पेसेस फॉर अननोन एलिमेंट विच इज़ देन डिस्कवर्ड। स्टूडेंट्स, जब तक कि नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं किए गए तो मैंडलीव ने कुछ जो है स्पेसेस, एम्प्टी स्पेसेस छोड़ी थी जिससे जो न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट है उनको जगह मिली वहाँ पे, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ दिस पीरियोडिक टेबल हेल्प टू क्रैक द डाउटफुल एटॉमिक मैसेस। स्टूडेंट्स, इससे पहले के जितने भी पीरियोडिक टेबल्स थे उनको रिजेक्ट किया गया, उनसे कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं उठाया, बट यहाँ पर आपके पास जो है इस पीरियोडिक टेबल में मैंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल ने बहुत हेल्प की उन एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस को ठीक करने की जिन पे डाउट था। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत सक्सेसफुल गया, लेकिन देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ Mendeleev's periodic table. So we will discuss 1 by 1. He placed some of the elements having different properties in the same group. Students, Mendeleev ने कुछ एलिमेंट्स को सेम ही
कुछ एलिमेंट को प्लेस किया गया था डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले ग्रुप को एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में, ठीक है। कुछ एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। देयर इज़ नो आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैनदीव ने आल्दो कि एलिमेंट्स को अरेंज तो किया, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कोई भी आइडिया नहीं दिया। देयर इज़ नो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। स्टूडेंट्स कि कोई भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन मैनलीव्स ने नहीं दी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को ऑल्दो ने अरेंज किया, लेकिन कोई भी आइसोटॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी। नेक्स्ट वन इज़ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स जो कि ग्रुप नंबर 1 है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि ग्रुप नंबर 2 है, दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन मैनदीव ने इन दोनों ग्रुप के एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखा गया था, जो कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक था मैनदीव्स की पीरियोडिक टेबल में। स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टूवर्ड्स समिंग अप। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन। Students, in 1800 only 34 elements were known up to the year of 1800, but in 1870 this number becomes almost double, and by 1974 the figure was 105. But at present about 118 elements are known. From 118, 92 elements are naturally occurring on Earth crust and 26 elements are man-made. Students, with the passage of time, it is difficult for chemists to study each of these elements and their compounds. So chemists classify these elements in a group and periods. So what is the classification of elements? The method of arranging elements with similar properties in a same group and separating them from the element with different properties is called classification of elements. Why we classify the elements? We classify the elements because the classification of element makes the study of elements and their compounds easier and easier. And the second one purpose is the classification of elements enable the chemist to understand the properties of the different elements. Now students, how these elements were classified? What is the periodic table? The table of elements obtained by arranging them in order of their increasing atomic number, in which element having the similar properties are placed in one group are called periodic table, and dissimilar properties and the element having dissimilar properties are placed in different groups. Now students, what is the history of periodic table? Students, from the 1800 there are different scientists who discovered the periodic table on the basis of either the atomic number, either the atomic mass. And the first one is Al-Razi, who classified the elements into the metal and non-metal. And the second one is Dobriner. He classified the elements on the basis of their atomic masses, and his classification were known as triads. And the third one is Newland's classification. Newland's classification, also known as octaves classification or law of octaves, in which he classified the elements in order of increasing atomic masses. Students, and the next classification is done by Mendeleev. Mendeleev was a Russian chemist who arranged elements in order of increasing atomic masses, and his classification were the physical and chemical properties of the element or the periodic function of their atomic masses. Students, Mendeleev's periodic table was the base of modern periodic table. Students, now moving towards your homework. Students, you have to make an assignment on introduction to periodic table. आपने आज जितना भी लेक्चर जो है स्टडी किया, इससे रिलेटेड आपके पास ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने बुक पे हेडिंग बनाकर कंप्लीट एक असाइनमेंट बनाकर मुझे फॉरवर्ड करनी है।